خدا کے کلام کی سچائی کو دیکھتے ہیں کہ روزوں کے بارے میں جو تعلیم بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے وہ کیا ہے۔ میرے ساتھ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت مقدسہ کو نکال لیجیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب تم روزہ رکھو تو رہاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے، اے مقدسینوں، خدا کے لوگوں، لکھے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ کلام خداوند کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ پریز لارڈ۔ بہت ہی خوبصورت ریفرنس ہم نے کلام خداوند میں سے پڑھا ہے۔ ان ایام کے مطابق جیسا کہ روزوں کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے، روزوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں اس کی ترتیب بتا رہا ہے، ہمیں اس کے سٹیپ بتا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے روزوں کے اندر جو ہے ٹھہرنا ہے، انہیں کس طرح سے ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے ان روزوں کو رکھ کر خدا کے حضور سے اپنی برکت کو، اس کا اجر کو خداوند سے ریسیو کرنا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کلام خداوند میں 16ویں آیت مقدسہ میں پڑھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو رہاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ ہم دیکھتے ہیں اقوام عالم کے اندر اور دین مسیحیت کے اندر بھی بہت ساری ایسی قباحت پائی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے ایسا روزہ رکھتے ہیں جس کا انہیں اجر نہیں ملتا۔ اسی لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم نے جس مقصد کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے، اور جس لیے ہم خدا کے حضور میں روزہ میں ٹھہرے ہیں، فاقہ میں ٹھہرے ہیں، اور خدا کے حضور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میرے عزیزو نیت ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم کس لیے روزہ کو رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہماری نیت صاف ہے۔ جب ہم خدا کے حضور آئیں تو اپنی زندگی کے اندر سے تمام تر ان چیزوں کو نکال کر ہم جو ہے پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور آئیں، اور بڑی دلیری کے ساتھ، اور دوسروں کے لیے رحم دلی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ، اور خدا کہ پاک روح کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کے پاک روح کو کثرت سے محسوس کرتے ہوئے ہم خدا کے حضور میں اس بات کے لیے آئیں کہ آج جب ہمارے مسیحی روزوں کا آغاز ہو چکا ہے تو کلام اقدس کے اندر جیسے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو رہاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ ہم نے اپنے منہ کو نہیں بگاڑنا، ہم نے لوگوں کو نہیں دکھانا کہ ہم روزے دار ہیں، ہم اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں، بلکہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے دوسری قوموں کی طرح ہم نے روزہ نہیں رکھنا۔ کلام خداوند کلیئر ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، یعنی کہ اے مسیحو، اے خدا کے لوگوں، اے مقدسینوں، اے خدا کے خون سے دھلے ہوئے، اے خدا کے خون سے خریدے ہوئے، جب تم روزہ رکھو تو رہاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ لکھا ہے کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں
ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। वो लोगों से इसका अवार्ड लेना चाहते हैं, लोगों से ये कहलाना चाहते हैं कि ये रोज़ेदार है और इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे ऐसा एक मसीही तालीम के अंदर ये कानून नहीं है। मसीही तालीम जो है वो ईमानदारी, वफादारी और मोहब्बत की तालीम देती है। मसीह ईमानदार को चाहिए कि वो अपने मुंह को मत बगाड़े ताकि लोग उसे ना पहचाने, लोग जो है उसका अवार्ड उसे ना दें, अजर ना दें, लोग उसको ना कहें कि ये रोज़ेदार है। बल्कि मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको चाहिए खुदा के कलाम पर गौर करके आप खुदा को कलाम को फॉलो कीजिए। खुदा का कलाम आपको तालीम दे रहा है, खुदा उनका कलाम आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है कि तूने इस तरह से रोज़ा रखना है ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। जो ये चाहते हैं कि लोग उन्हें रोज़ादार जाने, लोग उनकी जो है दादरसी करें, तो लोग उनको उनकी प्रेस करें। हरगज़ खुदा का कलाम एक मसीह ईमानदार को, एक रोज़ेदार को जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जो खुदा के कलाम की तालीम को फॉलो करते हुए रोज़ा रखता है, उसे ये ज़ेब नहीं देता, उसे खुदा का कलाम कंडेम करता है। खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर क्लियर हमें तालीम देता है। बल्कि जब तू रोज़ा रखे, ए मसीही ईमानदार, जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल। खुदा का कलाम फरमाता है अपने सर में तेल डाल। प्रेज लॉर्ड, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। इसका मतलब है कि जब तू रोज़ा रखे तो खुदा का तेल जो है ये मसा को जाहिर करता है। तेरी जिंदगी के अंदर खुदा के रूह का मसा तासीर कर जाए और तेरे मुंह के अंदर से जो कुछ अल्फाज तेरे सादर होते हैं, तेरी जिंदगी में से जो काम रूनमा होते हैं, जो कुछ तू करता है, जो तेरे वसीला से जो कुछ भी इस रूह ज़मीन पर होता है वो खुदा के जलाल के लिए हो, वो मसा से भरपूर हो, वो लोगों के लिए शफकत, मेहरबानी और रहम का सबब ठहरे और तेरी जिंदगी में रोज़ा जो है एक तब्दीली का जो है ज़रिया पैदा करे और तेरी जिंदगी के अंदर रूहानी बालूत की आए। तेरी जिंदगी के अंदर तेरी जिंदगी जो है एक तब्दील शुदा जिंदगी बन जाए और तू पहले जैसा ना रहे, बल्कि तू मसा से मैमूर शुदा हो जाए, तू रूहानी तौर पर तरक्की करे। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, दुआ जो है इसके साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करना चाहता हूँ कि दुआ भी हमने कंटिन्यू करना है। इस दुआ के अंदर हमने तरक्की करनी है, दुआ के ड्यूरेशन को बढ़ाना है, खुदा की रफाकत के वक्त को हमने अपनी जिंदगी में बढ़ाना है। अगर आप पहले 5 मिनट की प्रेयर करते हैं तो यकीनन जब आप रोज़े के अंदर ठहरेंगे, जब आप रोज़ा रखेंगे तो यकीनन आप जो है उसके टाइम को इंक्रीज करने वाले होंगे और खुदा की रिफाकत आप में बढ़ती चली जाएगी, आप रूह से महमूर होते चले जाएंगे। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, दुआ जो है इंसान को गुलामी की हालत से निकाल लेती है और रोज़ा जो है वो इंसान को गुलामी की आदत से निकाल लेता है। मैं ईमान रखता हूँ कि जो हमारी आदत हैं, जिनके अंदर हम फंसे हुए हैं, अगर हम नशे की हालत में हैं, अगर हम गाली गलोच करते हैं, अगर हमारी जिंदगी के अंदर नफरत का बीज बोया जाता है, तो यकीनन जब हम रोजे में ठहरेंगे, यकीनन जब हम खुदा के साथ रिफाकत रखेंगे, जब हम खुदा के कलाम की तालीम को फॉलो करेंगे, जब हम रोजे में ठहरेंगे, तो यकीनन खुदा आपकी मदद करेगा और उस रोजा के वसीला से हम उन इंसान की जो आदत के गुलाम हम बन चुके हैं, जो दुनियादारी की चीजों के गुलाम बन चुके हैं, यकीनन रोजे के वसीला से वो बंधन टूटेंगे, वो आदत के
अंबार जो हमारी जिंदगी में लगे हुए हैं और खुदा के करीब हमें नहीं आने देते, खुदा की मोहब्बत को हमें जानने में रुकावट बने हुए हैं, वो बंधन यकीनन टूटेंगे। और रोजा इन आदत को तोड़ने के लिए, उनसे निकालने के लिए एक बेहतरीन आप लोगों के पास हथियार है। आप इसे यूज कीजिए। ये टूल आपकी मदद के लिए है, आपकी रूहानी तरक्की के लिए, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए है, आपके और आपके घराना की सलामती के लिए है। और आप खुदा के हुजूर में एक बड़ा अजर पाएंगे। खुदा जो लिखा है, जो पोशीदगी में है, वो फिर इसका बदला देगा, वो इसका अवार्ड देगा, वो आपको मालोमाल करेगा, आपको अपने रूह से महमूर करेगा। आप उसमें तरक्की करते चले जाएंगे, आप दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहर जाएंगे, आप दूसरों के लिए तसल्ली का बायस ठहर जाएंगे। आपके चेहरा के अंदर से फिर खुदा के नूर जो है वो दूसरों के लिए सेपरेट होगा और मुनक्कस होगा। और दूसरों के लिए जब आप दुआ में ठहरेंगे उस रोजा के साथ, उनके भी बंधन टूटेंगे, आपके खानदान के भी अंदर एक बहाली आएगी और आप बरकत पर बरकत पाएंगे। खुदा मेरी दुआ है कि हमें इस सही रोज़े को रखने और खुदा की तालीम को फॉलो करने और इन बातों पर ईमान रखने की और सच्चाई से वाकिफ होने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इस 2023 के अंदर हम इस तरह से कलाम खुदावन के मुताबिक हम रोज़े रखें, कलाम खुदावन की बातों को फॉलो करते हुए और इस तालीम पर अमल करते हुए हम रोज़ों के अयाम को हम कंटिन्यू कर सकें, ताकि हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है, हमारे शहरों की जो सिचुएशन है, हमारे ख़ानदानों की जो सिचुएशन है, हमारी कलीसियाओं की जो सिचुएशन है, हमारे चर्चेस की जो सिचुएशन है, खुदावन इन रोज़ों के वसीला से जब हम उसके हजूर में इस बात के लिए रोज़े रखेंगे, इस बात के लिए उसके हुजूर में ठहरेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदावन जरूर अपने आसमान को खोलेगा और एक बड़ा रिवाइवल आएगा, एक बड़ी जिंदगियों के अंदर तब्दीली आएगी, मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी, शहरों के अंदर तब्दीली आएगी, हुकूमतों के अंदर तब्दीली आएगी और हमारी कलीसियाओं के अंदर एक बड़ा रिवाइवल आ जाएगा। प्रेज लॉर्ड। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।